Hello, and a very warm welcome to this video. I welcome 11G and 11E students, as well as my viewers on YouTube. As you all know, this is Akhlaq Ahmed, an English teacher from AMU. Uh, Now, you see, in this video, I would be focusing on the use of determiners. Determiners are very important. It's a part of CBSE course, class 11th. Moreover, for spoken English as well as written English, it's very important to learn the use of these words. So, especially for the viewers of YouTube, I'd like to say that I'd attach my WhatsApp number with um, the description of the video, and you can please send me what voice notes only if you have any questions, or if you want to have any clarifications, or you know any suggestions. As far as 11G or 11E students are concerned, they of course can send their feedback on their respective groups. So you see, I'll see if I can um, connect this video to two playlists. That is the one called Spoken English and the other 11 CBSE. It will of course be available on 11 CBSE, but let's see if I can connect it to the other one as well. So anyway, without wasting any more time, let's come straight away to our topic. Determiners, in fact, are words which you know determine the quantity, quality. No, not the quality. Sorry, quantity, degree, number, etc. They are usually a set of some adjectives, all pronouns, and articles. So we'll discuss important determiners. There are various ones, so many and so many variations of them. But we'll discuss most of the determiners one by one, and as far as a few other determiners which remain, um, that can be modeled on what we have discussed. कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो अपने आप ही आपके समझ में आ जाएंगे कि उन्हें कैसे यूज करना है. जो वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे उनके बेसिस पे तो ऑलमोस्ट सभी डिटर्मिनर्स आ जाएंगे, सारे डिटर्मिनर्स. Mind you, 11G, I have discussed with you several determiners, and this will be a repetition for you. But don't worry, you can help. I will take help of this video. सारे इसमें भी सारे होंगे, और जो डिटर्मिनर्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो रिपीट भी होंगे, तो आप इसको दोबारा से सुन लें, आपका रिवीजन भी हो जाएगा, एंड यू कैन कीप इट सेव विद यू. सो you know we will and by the way, 11E and 11G, when we meet for our regular classes, we will start writing skills instead of focusing on determiners, because this will complete in the video. So I'll try to complete in this video itself, but if it is too long, then I'll divide it in two parts. Okay, so let's start. First, we will compare and discuss all, every, and whole. I'll discuss every in detail when I come to each and every, but here, there would be some references to it. So remember that we do not normally
use all to mean everybody or everyone. यानी all का इस्तेमाल जब हम करते हैं तो हमेशा हमारा मकसद एवरीबॉडी या एवरीवन को रेफर करना नहीं होता. जैसे आप ये एग्जांपल देखें, एवरीबॉडी एंजॉयड द पार्टी. अगर हम यहाँ पे ये कहें कि ऑल एंजॉयड द पार्टी तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ऑल के साथ हमें कुछ और भी चाहिए, वो हम आगे डिस्कस करेंगे. ये ध्यान रखें कि ऑल एंजॉयड द पार्टी इज रॉन्ग, एवरीबॉडी एंजॉयड द पार्टी इज करेक्ट. But remember that we can say all plus us, you, them, um, and not um, everybody of. जैसे मिसाल के तौर पे all of us enjoyed the party, यानी all of us enjoyed the party आप कहें या everybody enjoyed the party, मीनिंग एक ही है, लेकिन all के बाद आपको of us या of them या of you लगाना पड़ेगा. तो इस तरह से इसमें हम ये नहीं कह सकते कि everybody of us enjoyed the party would be wrong. अब देखते हैं all and everything. Sometimes it is possible to use um, all or everything in exchangeably. दोनों को ही इस्तेमाल करना दुरुस्त होगा. जैसे I'll do all I can to help you और I'll do everything I can to help you. ये दोनों ही सेंटेंसेस सही हैं. um, तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं. वी कैन से दैट ऑल के बाद हमें कुछ चाहिए, मसलन ऑल आई कैन, यू नो, ऑल यू नीड, इस तरह के फ्रेजेस. बट वी डू नॉट नॉर्मली यूज ऑल अलोन, यानी कि ऑल को अकेले इस्तेमाल नहीं किया जाता, ऑल के साथ कुछ होता है आम तौर पे. मतलब यानी कि इंग्लिश में कोई रूल नहीं होता. यू सी देयर आर सो मेनी वेरिएशंस इन इंग्लिश दैट वी कैनॉट से फॉर श्योर दैट इट्स अ रूल. नहीं, रूल नहीं, जनरली हम कहते हैं ज़्यादातर हमें ऑल के साथ कुछ ना कुछ चाहिए होता है. नाउ सी दिस एग्जांपल, ही थिंक्स ही नोज एवरीथिंग. अगर हम कहें ही थिंक्स ही नोज ऑल तो ठीक है, बात तो कम्युनिकेट हो जाएगी, बट इट विल बी रॉन्ग. हाँ, इस तरह कह सकते हैं he thinks he knows all that is there to know, तो वो तो फिर एक अलग मसला हो जाएगा. तो all that is there to be known या he thinks he knows all he can, ये बात अलग हो जाएगी. लेकिन he thinks he knows all ये नहीं कहना चाहिए, हमें कहना चाहिए he thinks he knows everything. एक और एग्जांपल देखिए, our holiday was a disaster, everything went wrong. So we'll say everything went wrong, not all went wrong. Uh, we use all in expressions like all about. मिसाल के तौर पे they told us all about their holiday. We also use all and not everything to mean the only thing. Now let's have an example. All I've eaten today is a sandwich. So all I have eaten today is equal to the only thing I have eaten today. यानी all I have eaten today क्या माने, यानी मैंने जो कुछ भी आज खाया है, the only thing I have eaten. So all I have eaten today is a sandwich. इसी तरह से हम कहते हैं all the milk was spilled. यानी whatever milk was there that was spilled. और याद रखिए, ये भी जब हम कह रहे हैं तो हमारा मतलब है कि मिल्क बहुत कम था. Anyway, all is used to refer to mean the only thing. Now we come to you see everybody and
everyone and everything. These words are singular words, and so we use a singular verb with them. ये सारे के सारे singular words हैं. इनके साथ हम singular verb का इस्तेमाल करते हैं. ये sentences देखिए. Every seat in the theater was taken. Were taken नहीं कहेंगे. Everybody has arrived. Have arrived नहीं कहेंगे. लेकिन एक चीज याद रखिएगा. But we often use plural pronouns for them, such as they, them, their, after everybody and everyone. We normally use, we often use this. जैसे everybody said they everybody said they enjoyed themselves. तो यहाँ पे everybody said ये है singular, मगर उसके बाद हम यूज कर रहे हैं they और themselves. They enjoyed themselves. तो हम ये नहीं कहेंगे कि everybody said that he or she enjoyed himself or herself. इसीलिए शायद यहाँ पे यही रीजन है कि everybody includes both the genders, male and female. So we choose they. We put they enjoyed themselves. तो स्ट्रिक्ट इंग्लिश रिटन ग्रामर में तो शायद ये करेक्ट ना हो, लेकिन बहरहाल अब देखें ऐसा होता है ग्रामर और यूसेज के बीच में क्लैश होता है. लेकिन अब जो इंग्लिश बोली जा रही है, करंट इंग्लिश, उसमें यही यूसेज है. तो इस चीज का ध्यान रखिएगा. Okay, now we come to all and whole. You see, whole means complete or entire. And normally, whole is used with singular nouns. For example, she has lived her whole life in Scotland. So lived her whole life in Scotland. Life is singular. We normally use the or my or her etc. before whole. यानी जैसे हमने यहाँ कहा हर होल लाइफ, तो उसके साथ हम कुछ ना कुछ यूज करते हैं. नाउ सी दीज एग्जांपल सेंटेंसेस जिसमें कि हम कंपेयर कर रहे हैं द यूज ऑफ होल एंड ऑल. द होल बुक और ऑल द बुक, हर होल लाइफ या ऑल हर लाइफ. देखिए इसको समझिए. या तो हम ये कहें कि द होल बुक, या फिर कहें ऑल द बुक. इसी तरह से या फिर हम ये कहें हर होल लाइफ, या फिर हम कहें ऑल हर लाइफ. नाउ सी दीज एग्जांपल्स. उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी. यानी शी हैज लिव्ड हर होल लाइफ, या तो हर होल लाइफ कहें, या फिर हम कहें शी लिव्ड she lived all her life in Scotland, या she lived her whole life in Scotland. तो all her life in Scotland, या इसको एग्जाम्पल दोबारा वो कंफ्यूजन कुछ हो रहा है. देखिए दो चॉइसेस हैं हमारे पास. या तो हम कहें she lived her whole life in Scotland. होल लगाएंगे तो हमें कहना पड़ेगा हर होल लाइफ, और ऑल लगाएंगे तो ऑल हर लाइफ हमें कहना पड़ेगा. शी लिव्ड ऑल हर लाइफ इन स्कॉटलैंड. देख रहे हैं, ऑल हर लाइफ, यानी ऑल के बाद हर और फिर लाइफ. जबकि यहाँ होल के साथ ऑर्डर डिफरेंट है. होल के साथ क्या होगा, शी लिव्ड हर होल लाइफ इन स्कॉटलैंड. ऑल हर लाइफ और हर होल लाइफ. तो होल जब हम लगाएंगे तो उससे पीछे हर होगा, ऑल लगाएंगे तो उसके बाद हर होगा. ये थोड़ा सा डिफरेंस है, यूसेज है ये, तो समझने की कोशिश कीजिए. नाउ वी कैन यूज होल फॉर एग्जाम्पल टू से
इस तरह से भी होल को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे जैक वॉज सो हंग्री दैट ही एट अ होल पैकेट ऑफ बिस्किट्स। अ होल पैकेट ऑफ बिस्किट्स से मतलब अ कंप्लीट पैकेट ऑफ बिस्किट्स। अब ये अ होल, ये भी सही है। वी डू नॉट नॉर्मली यूज होल विद अनकाउंटेबल नाउन्स। जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके साथ हम होल आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते। मसलन, आई हैव स्पेंट ऑल द मनी यू गेव मी, यानी वट एवर मनी यू गेव मी आई हैव स्पेंट दैट, नॉट द होल मनी यू गेव मी। अगर हम कहें आई हैव स्पेंट द होल मनी यू गेव मी, तो दैट विल बी रॉन्ग, बिकॉज मनी इज अनकाउंटेबल। हाँ, वो बात अलग है कि मनी की जो यूनिट्स हैं, मसलन रुपी है, डॉलर है, कॉइन्स हैं, तो इसको तो काउंट कर सकते हैं, बट मनी इन इटसेल्फ इज अनकाउंटेबल। तो एक जल्दी से छोटा सा कंपैरिजन एवरी, ऑल और होल को भी देख लीजिए विद फ्रेजेस ऑफ टाइम, वर्ड्स ऑफ टाइम। वी यूज एवरी टू से हाउ ऑफन अ थिंग हैपन्स, कितनी बार एक चीज होती है। सो वी से एवरी डे, every Monday, every 10 minutes, every 3 weeks, you know, like when we were on holiday, we went to the beach every day, not all day, not all days, ऐसे नहीं कहेंगे। We went to the beach all days, ये गलत हो जाएगा, every day कहना चाहिए। The bus service is very good. There is a bus every 10 minutes. Ann, ये नाम है, Ann gets paid every 4 weeks. All day या the whole day. This means um, complete day, right from the beginning to the end. तो याद रखिए, all day या the whole day. We spent all day or the whole day on the beach. या तो ये कहिए we spent all day on the beach, या कहिए we spent the whole day on the beach. He was very quiet. He did not say a word all evening. Yeah, he did not say a word the whole evening. हाँ, एक चीज का ध्यान रखिएगा कि हम कहते हैं all day, not all the day. all के साथ फिर द नहीं लगेगा, या all week, not all the week, जबकि whole के साथ द लगेगा। तो um, um, अब देखिए ऑल टाइम और एवरी टाइम को कंपेयर करिए आप यहाँ पे इन एग्जांपल्स पे। दे नेवर गो आउट, दे आर एट होम ऑल द टाइम, यानी वो कभी बाहर नहीं जाते, हर वक्त वो घर पे रहते हैं। ऑल द टाइम, पूरे वक्त, पूरे समय। ऑल द टाइम मीन्स ऑलवेज, लेकिन यहाँ पे एवरी टाइम का यूज नहीं होगा। इसी तरह से एवरी टाइम आई सी यू, यू लुक डिफरेंट। So every time I see you is equal to each time or every occasion, यानी जब कभी भी मैं आपको देखता हूँ, तो all time नहीं आएगा यहाँ पे। तो इस तरह से ये कुछ वेरिएशंस हैं। ये आपने देखा all और whole और every का डिस्टिंक्शन जो है वो आपने देखा। Now we come to some other um, you know some other um, we come to each and every के कुछ पॉइंट्स हमने अभी देखे हैं, और अब कुछ हम और देखेंगे। each and every, it's very interesting. You see, each and every are similar in meaning. Often it is possible to use each or every, either each or every, इनमें से कोई भी आप इस्तेमाल कर लें।
अब इन एग्जाम्पल को देखिए, ईच टाइम और एवरी टाइम आई सी यू यू लुक डिफरेंट, जैसा कि अभी पीछे एग्जाम्पल देखी हमने. देर इज अ टेलीफोन इन ईच रूम और एवरी रूम ऑफ द हाउस. इन केसेस में हम ईच और एवरी दोनों ही इस्तेमाल कर सकते हैं. बट ईच एंड एवरी आर नॉट एग्जैक्टली द सेम. इनमें कुछ डिफरेंसेस भी हैं. लेट्स स्टडी द डिफरेंसेस. ये हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वी यूज ईच व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स सेपरेटली और वन बाय वन. देखिए, अब आप ये पूछ सकते हैं कि भाई जब एक ही है तो फिर कैसे हम, अगर हमें फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तो हम क्या करेंगे, ईच भरेंगे या एवरी भरेंगे. तो उसमें पहली कंडीशन ये है कि हमें ये देखना पड़ेगा कॉन्टेक्स्ट से कि हम सेपरेटली, आर वी थिंकिंग अबाउट थिंग्स सेपरेटली, आर वी टेकिंग ट्रीटिंग देम वन बाय वन और नॉट. लुक एट दीज एग्जांपल्स. For example, we say, study each sentence carefully. Study each sentence carefully. मतलब क्या हुआ इसका? इसका मतलब हुआ study the sentences one by one. तो यहाँ पे हमारा कहने का मतलब, जब हम each sentences कह रहे हैं तो हमारा मतलब है कि एक एक करके हर जुमले को ध्यान से पढ़िए. Study each sentence carefully is equal to study the sentences one by one. यहाँ पे हम every इस्तेमाल नहीं करेंगे because we want to say that each sentence must be studied separately. उसका एक सेंटेंस का दूसरे से कोई संबंध नहीं है, तो यहाँ पे हम each इस्तेमाल करेंगे. ओके, एक और एग्जांपल देखिए. Each is more usual for a small number. जैसे कि हम नंबर के हिसाब से ईच इस्तेमाल करें, तो स्मॉल नंबर जब होगा तब हम ईच प्रेफर करेंगे, एवरी प्रेफर नहीं करेंगे. फॉर एग्जांपल, देयर वर 4 बुक्स ऑन द टेबल, ईच बुक वाज अ डिफरेंट कलर. अब यहाँ पे हम एवरी बुक नहीं कहेंगे बिकॉज 4 इज अ स्मॉल नंबर. अब कार्ड गेम, फॉर एग्जांपल, यू नो, इन अ कार्ड गेम, at the beginning of the game, each player has 3 cards. क्योंकि हमें मालूम है कार्ड गेम में 2, 3 या 4 प्लेयर्स होते हैं एक साथ, तो at the beginning of the game each player has 3 cards. अब देखिए every, we use every when we think of things as a group. पीछे आपको बताया था कि each हम तब इस्तेमाल करते हैं जब चीज़ों को बारे में सेपरेटली सोचें या चीज़ों को वन बाय वन लें. तो इसके अपोजिट, व्हेन वी थिंक ऑफ थिंग्स एज अ ग्रुप, वी यूज एवरी. कैसे? द मीनिंग इज सिमिलर टू ऑल. इन दिस केस द मीनिंग इज सिमिलर टू ऑल. मिसाल के तौर पे, एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब. यहाँ पे एवरी का मतलब क्या है? ऑल सेंटेंसेस इन जनरल. मतलब every sentence must have a verb. All sentences in general must have a verb. So we are thinking of sentences as a group. ठीक है? Every is more usual for a larger number. अभी आपको बताया कि each जो है वो smaller number के लिए होता है. Every is for larger number. For example, Carol, ये नाम है, Carol. Carol loves reading. She has read every book in the library. Every book means all the books. I would like to visit every country in the world. So every country means all the countries. अच्छा, अब देखते हैं, each, not every can be used for 2 things. याद रखिए, अगर 2 चीज़ों को रेफर करना हो तो हमेशा ही each का इस्तेमाल होगा. For example, in a football match, each team has 11 players.
नॉट एवरी टीम, क्योंकि आपको पता है फुटबॉल मैच, एक फुटबॉल का जो मैच होता है उसमें दो टीमें ही खेलती हैं. सो फॉर टू वी ऑलवेज यूज ईच. We use every, not each, to say how often everything happens. अगर हमें ये बताना हो, किसी बात की फ्रीक्वेंसी बताना हो कि ये कब कब कितनी होती है, जैसे आपसे डॉक्टर पूछे कि भाई आपको खांसी दिन में कितनी बार आती है, आपकी तबीयत खराब है, डॉक्टर आपसे पूछता है कि कितने कितने घंटे बाद आती है. तो मतलब आप कहें साहब एवरी 2 आवर्स, एवरी 5 आवर्स, एवरी 20 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स. तो कितनी कितनी बार, हाउ ऑफन अ थिंग हैपन्स. मिसाल के तौर पे द क्वेश्चन हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग. अब यही सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि आप शॉपिंग के कितनी बार करते हैं. जवाब है एवरी डे, नॉट ईच डे. हर रोज शॉपिंग नहीं करनी चाहिए, दैट्स अ बैड हैबिट. एक ही बार शॉपिंग करें, वरना तो फिर बजट जो है वो आपका बिगड़ जाएगा. तो आई रिपीट द एग्जांपल, हाउ ऑफन डू यू गो शॉपिंग. अब ये बताएगा आंसर कि हाउ ऑफन आप कितनी बार करते हैं. आंसर इज एवरी डे, नॉट ईच डे. जब आपको फ्रीक्वेंसी बतानी हो, ये बताना हो कि एक बात कितनी बार हो रही है, तो ईच डे नहीं आएगा. देयर इज अ बस एवरी 10 मिनट्स, नॉट ईच 10 मिनट्स. अब compare these structures we use with each and every. Learn these structures. We can use each with a noun. मिसाल के तौर पे each book या each student, हम ये कह सकते हैं. Each, you know, we can use each alone also without a noun. तो नाउन के साथ भी इस्तेमाल हो सकता है और अकेले भी इस्तेमाल हो सकता है. इन बोथ केसेस. मिसाल के तौर पे none of the rooms was the same, each was different. तो या तो कहिए each was different या each room was different, दोनों ही सही हैं. और you can use each one भी इस्तेमाल हो सकता है. each one was different, यानी अब हमारे पास तीन चॉइसेस हो गई. none of the rooms was same, या तो इसके आगे हम कहें each was different या each room was different या each one was different. ये सब के सब करेक्ट है. You can also say each of the, या फिर each of these वगैरह जैसी सिचुएशन हो. Read each of these sentences carefully. तो each of these sentences भी कह सकते हैं या each sentence carefully, दोनों ही सही हैं. Each of the book is different, different color. Also, each of us और you और them ये भी कह सकते हैं. यानी each of you, each of us, each of them ये भी कह सकते हैं. मिसाल के तौर पे each of them is a different color. या नेक्स्ट है you can use every with a noun. नाउन के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं हम every को. For example, every book, every student. You can use one, not you can use every with one, not alone. every को alone मतलब अकेले इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. everyone कह के इस्तेमाल करेंगे. For example, have you read all these books? Yes, everyone. अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते yes every, वो गलत हो जाएगा. ठीक है ना. जवाब में हमें कहना पड़ेगा yes everyone. every अलग लिखेंगे, one अलग लिखेंगे. एवरी वन जो मिला के लिखते हैं उसका मतलब होता है एवरी पर्सन या एवरी बॉडी. अगर इस तरह से बोलना हो तो एवरी अलग लिखा जाएगा और वन अलग लिखा जाएगा. यू कैन से एवरी वन ऑफ, ये कहना भी मुमकिन है. एवरी वन ऑफ या एवरी ऑफ तो खैर नहीं कह सकते. देखिए एग्जाम्पल देखते हैं.
I've read every one of those books, not every of those books. हाँ, अगर आप ऑफ लगाना चाहते हैं तो एवरी वन के साथ लगाना पड़ेगा, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स, ना कि एवरी ऑफ दोज बुक्स। याद रखिए ईच के साथ ये कंडीशन नहीं है, ईच ऑफ दोज बुक्स कह सकते हैं लेकिन एवरी ऑफ दोज बुक्स नहीं कह सकते, एवरी वन ऑफ दोज बुक्स कहना पड़ेगा आपको। हाँ, ईच वन ऑफ दोज बुक्स कहें तो गलत नहीं है। आई हैव रेड ईच वन ऑफ देम, ये सही है जैसा आपको पीछे अभी बताया मैंने। आई हैव रेड एवरी वन ऑफ देम, तो एवरी वन ऑफ कहना पड़ेगा, एवरी ऑफ नहीं कह सकते। यू कैन ऑल्सो यूज ईच इन द मिडल और एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वर ईच given a book. The students were each given a book. या each student was given a book. अब ये वर और was का फर्क इसलिए हो गया क्योंकि प्लूरल और सिंगुलर हो रहा है। The students, यहाँ पे s लगा हुआ है इसलिए वर का इस्तेमाल हो रहा है। The students were each given a book, यानी हर स्टूडेंट को एक किताब दी गई। अब जब each student से शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ पे s नहीं लगाएंगे, each student was given a book, तो मिडिल में भी आ सकता है, बिगिनिंग में भी आ सकता है। द ऑरेंजेस कॉस्ट 25 पेंस या 20 रुपीज आप कह दीजिए ईच। द ऑरेंजेस कॉस्ट 20 रुपीज ईच, ये मैं मिसाल दे रहा हूँ, 20 रुपए का तो एक संतरा नहीं मिल रहा। तो द ऑरेंजेस कॉस्ट 20 रुपीज ईच, मतलब एक ऑरेंज की कीमत कितनी है, 20 रुपीज। अब जरा सा ये पीछे जो मैं बात कर रहा था आपसे इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए कि एवरी वन और एवरी वन में क्या फर्क है। यानी EVERYONE, वन वर्ड जो हो एवरी वन, और एवरी अलग लिखा जाए और वन लिखा जाए, तो इनमें क्या फर्क है ये भी समझ लीजिए। एवरी वन और एवरी वन, एवरी वन, एवरी वन, ये अलग अलग बोलने का तरीका है। तो एवरी वन कैसे यूज होगा, इट्स वन वर्ड and it's only for people. It's only for people. It means everybody. Or everyone. ये जो है every और one अलग अलग जो लिखा जाता है ये two words हैं and it is used for things or people and is similar to each one. बात समझ में आ रही है? देखिए everyone वो वन वर्ड है और सिर्फ पीपल के लिए यूज होगा, ओनली फॉर लिविंग थिंग्स, आपने समझ लीजिए। और इसका अर्थ होता है एवरी वन, एवरीबॉडी। एवरी वन जो अलग अलग लिखते हैं वो टू वर्ड्स हैं, देयर आर टू वर्ड्स एंड इन वर्ड्स को हम यूज करते हैं पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए। इसका अर्थ जो होता है वो ईच वन के बराबर होता है। जैसे मिसाल देखिए, everyone enjoyed the party, मतलब everybody enjoyed the party, यहाँ पे everyone एक वर्ड है। अब दूसरी एग्जांपल देखिए, he is invited to lots of parties and he goes to every one, यानी every party, he is invited to lots of parties and he goes to every one, ये अलग अलग है, यहाँ पे मिला के नहीं लिखा जाएगा everyone, क्योंकि मैं फिर बता दूं everyone means everybody, मिला के जो लिखा जाता है वो means everybody and it is used only for people. everyone जो अलग अलग लिखा जाता है that is used for persons and things, दोनों के लिए ही यूज हो जाता है। लेकिन ये दो वर्ड्स हैं, so you know he is invited to lots of parties and he goes to every one. अच्छा, अब ये हमारा जो टॉपिक है एवरी और ईच ये कंप्लीट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट एस्पेक्ट की तरफ आते हैं। ये आसान ग्रुप्स हैं कुछ, तो हम जल्दी जल्दी इनको निपटा लेते हैं। देखते हैं एल्डर और ओल्डर में क्या फर्क है। यू सी एल्डर
is used to refer to the age of one person in the family, whereas older is the comparative degree of old and it's followed by than, THAN. यानी कि एल्डर जब हम यूज करते हैं तो ये यंगर का ऑपोजिट है. जैसे मिसाल से समझिए इसको, ही इज माई एल्डर ब्रदर, ही इज माई ओल्डर ब्रदर नहीं कहेंगे, गलत हो जाएगा. ये तो कह सकते हैं ही इज ओल्डर देन मी, ही इज ओल्डर देन मी, या फिर ही इज माई एल्डर ब्रदर, या ही इज माई यंगर ब्रदर. तो यहाँ पे यंगर तो खैर हम डिस्कस ही नहीं कर रहे, एल्डर और ओल्डर में कंपैरिजन कर रहे हैं कि ये क्या यूज में क्या फर्क है, जो कि बहुत आसान है. तो ही इज माई एल्डर ब्रदर या ही इज ओल्डर देन मी, बस इतनी सी बात आपको समझनी है यहाँ पे. अब देखते हैं नेक्स्ट, फ्यू और फ्यू, द फ्यू. यू सी, फ्यू मीन्स हार्डली एनी, ये नेगेटिव है. इसका अर्थ तकरीबन ये हार्डली एनी मतलब मुश्किल ही से कुछ, तो इसका अर्थ नेगेटिव होता है आमतौर पे. और ये सभी कुछ नंबर के लिए यूज होते हैं. फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू तीनों नंबर के लिए यूज होते हैं. अ फ्यू का मतलब होता है सम और अ स्मॉल नंबर, and the few means the whole of the small number. Now let's see some examples. Um, for example, I have been living in this city for 3 months. I have few friends here. क्योंकि मुझे अभी इस शहर में रहते हुए 3 मंथ्स ही हुए हैं, तो आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हियर, मतलब फिर मुश्किल ही से यहाँ मेरे कोई दोस्त हैं, ऑलमोस्ट कोई दोस्त नहीं है. ओके, नाउ लेट्स सी. I have been living in this city for 6 months and luckily I have a few friends. अब यहाँ मैंने थोड़ा सा एग्जाम्पल को चेंज किया. आई हैव बीन लिविंग हियर इन दिस for 6 months and so luckily what I have a few friends, maybe 3 or 4. हाँ, यहाँ पे एक बात याद रखिएगा, ओनली अगर इसके साथ लगा दिया जाए, आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, तो फिर ये इस इक्वल हो जाएगा फ्यू फ्रेंड्स के, फिर नेगेटिव मीनिंग हो जाएगा इसका. आई हैव ओनली अ फ्यू फ्रेंड्स, तो मतलब आई हार्डली हैव एनी फ्रेंड्स. अब इसको देखिए, आई लॉस्ट द फ्यू बुक्स आई हैड, तो द फ्यू तब यूज करते हैं जब हमें रेफर करना हो ऑल ऑफ अ स्मॉल नंबर, मतलब पहले से ही मेरे पास थोड़ी सी किताबें थी, वो भी खो गई, तो द फ्यू. अच्छा, अब आते हैं लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल. You see, this is used for quantity. Little means not much, अधिक नहीं, थोड़ा सा, hardly any, ये भी नेगेटिव है. A little means a small quantity और some जैसा आपको पता है क्वांटिटी और नंबर दोनों के लिए यूज हो जाता है. And the little means, the little का मतलब होता है the whole of the small quantity. ये एग्जाम्पल देखिए, देयर इज लिटिल मनी इन माई पॉकेट, या इसको यूं कहें कि कैन यू बाय अ पिज्जा फॉर मी, एंड द आंसर इज नो सॉरी बिकॉज आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट. लिटिल मनी, हार्डली एनी मनी. वी शुड टेक अ लिटिल एक्सरसाइज, वी शुड टेक अ लिटिल एक्सरसाइज, यानी हमें थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए. ऐसा नहीं कि 4-5 घंटे, बल्कि थोड़ी सी एक्सरसाइज. तो अ लिटिल के साथ भी अगर ओनली ओनली लगा दें तो ये नेगेटिव हो जाएगा. ही इज वेरी फैट एंड यू सी ही टेक्स ओनली अ लिटिल एक्सरसाइज. वो तो पहले से ही बहुत फैट है और तब भी वो
थोड़ी सी ये करता है एक्सरसाइज, मतलब हार्डली जो सफिशिएंट नहीं है, तो ये सेंटेंस पे डिपेंड करता है. नाउ लुक एट दिस एग्जांपल. द लिटिल मनी ही हैड वाज स्टोलन. तो the little money he had was stolen. He already had just a little money, and that too was stolen, unfortunately. तो अब हम देखते हैं, you see a combination of much, many, many a and most. इसमें कुछ वर्ड्स हमें और मिलेंगे. इसमें थोड़ा सा कंपैरिजन रहेगा. Much and you know little are used only with uncountable nouns. For example, much time, much luck, little energy, little तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं. Many जो है, that is used with plural nouns. For example, many friends, many people. तो we use a lot. एक phrase और है a lot of या lots of या plenty of with uncountable nouns, uncountable and plural nouns. Much के साथ क्या था? Much के साथ था uncountable nouns, लेकिन वहाँ पे plural और singular की शर्त नहीं थी. ये जो हम इस्तेमाल करते हैं lots of, a lot of, plenty of, ये आमतौर पे uncountable भी हो और plural भी हो. For example, a lot of luck, lots of time, plenty of money, a lot of friends. यहाँ पे ये इन्होंने लिखा है uncountable, but friends is a countable noun. So we use we use a lot of, lots of और plenty of. ये जो है ये सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज हो जाते हैं और प्लूरल नाउन के साथ भी यूज हो जाते हैं. इनकी ये विशेषता है. जबकि मच जो है वो अनकाउंटेबल के साथ तो यूज होगा, प्लूरल के साथ यूज नहीं होगा. ये डिफरेंस है. मिसाल के तौर पे जैसे उन्होंने कहा कि आप ये कहें कि लॉट ऑफ लक या मच लक, लॉट्स ऑफ टाइम या मच टाइम, प्लेंटी ऑफ मनी या मच मनी, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स. अब यहाँ पे मच फ्रेंड्स नहीं कह सकते, दिस इज रॉन्ग, क्योंकि एक फ्रेंड जो है काउंटेबल भी है और प्लूरल भी है, जबकि मच जो यूज होता है वो अनकाउंटेबल के साथ होता है. लॉट्स ऑफ पीपल, यहाँ पे भी मच पीपल नहीं कह सकते. प्लेंटी ऑफ आइडियाज, यहाँ पे भी मच आइडियाज नहीं कह सकते. अच्छा, एक फ्रेज इस्तेमाल होता है प्लेंटी मोर देन इनफ. फॉर एग्जाम्पल, देयर इज नो नीड टू हरी, वी हैव गॉट plenty of time. Plenty of time मतलब more than enough time. We have got much time. अगर हम कहें तो उससे भी ऑलमोस्ट यही सेंस निकलेगा, लेकिन यहाँ पे plenty of time यूज होगा. I have had plenty to eat. I don't want any more. I have had plenty to eat, यानी मैं काफी कुछ खा चुका हूँ. So I don't need any more. अब we use much or many especially in negative sentences, ये ध्यान रखिएगा, and questions. Much और many कहाँ इस्तेमाल होता है? Negative sentences और questions में ज़्यादातर. जबकि a lot of इस सिचुएशन में a lot of भी possible है. जैसे let's look at these examples. We didn't spend much money. तो ये नेगेटिव है, यहाँ पे इन्होंने मच कह दिया, लेकिन यहाँ पे हम
वी डिडंट स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, ये दोनों ही सही हैं. डू यू नो मेनी पीपल और डू यू नो अ लॉट ऑफ पीपल, ये भी दोनों सही हैं जुमले. आई डोंट गो आउट मच और आई डोंट गो आउट अ लॉट, ये सब सही है. अब सवाल ये उठता है कि इन पॉजिटिव सेंटेंसेस अ लॉट ऑफ इज मोर यूजुअल. देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस में अ लॉट ऑफ का इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा यूजुअल है बजाय मच के. मच इज अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. गलत तो नहीं होगा, जो जैसे कि पीछे भी हमने पॉजिटिव ये सारे नेगेटिव सेंटेंसेस देखे, जैसे ये जो हमारे जुमले हैं, वी डिडंट स्पेंड, या ये क्वेश्चन है डू यू नो, या आई डोंट गो आउट, ये सब नेगेटिव है. इनमें ये नेगेटिव की जहाँ तक बात है तो उसमें तो मच और अ लॉट ऑफ दोनों ही इस्तेमाल करना ठीक है, और क्वेश्चंस में भी दोनों यूज हो सकते हैं. लेकिन जहाँ तक पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात है तो पॉजिटिव सेंटेंसेस में मच को अवॉइड करिए. मच इज अनयूजुअल इन पॉजिटिव सेंटेंसेस इन स्पोकन इंग्लिश. मिसाल के तौर पे, वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, नॉट मच मनी. मच मनी गलत तो नहीं होगा ग्रामेटिकली. अगर किसी हार्ड एंड फास्ट कोई रूल आप अपनाएं और उसके हिसाब से देखें तो गलत तो नहीं होगा. लेकिन अब जो इंग्लिश बोली जा रही है उसके हिसाब से जो कॉमन है, तो यहाँ पे अ लॉट ऑफ आना चाहिए. वी स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी, ये पॉजिटिव है. अगर हमें नेगेटिव में कहना होगा, वी डिड नॉट स्पेंड मच मनी. तो शॉर्ट में आप ये कह सकते हैं कि नेगेटिव में मच को प्रेफर करिए और पॉजिटिव में अ लॉट ऑफ को प्रेफर करिए. हाँ, नेगेटिव में अगर आपने अ लॉट ऑफ लगा दिया है तो गलत नहीं है. पॉजिटिव में भी मच लगा सकते हैं, मगर सवाल ये नहीं है कि क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि क्या करना ज़्यादा बेहतर है. तो एग्जाम्स में अगर आपको फिलअप करना हो तो जो अगर पॉजिटिव सेंटेंस हो और उसमें अगर चॉइस में अ लॉट ऑफ हो तो अ लॉट ऑफ लिखिए, और अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो चॉइस में अगर मच है तो मच लिखिए. जैसे मिसाल के तौर पे इसी के सेंटेंस को ले लें, वी स्पेंट ब्लैंक ऑफ मनी. अब इसमें आपको चॉइस दे दी गई मच और अ लॉट ऑफ. तो चूंकि सेंटेंस पॉजिटिव है इसलिए आप अ लॉट को प्रेफर करिए. ये अभी जहाँ पे के आसान क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे उसमें तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे और टोएफल वगैरह या और कोई बड़े कॉम्पिटिशन्स हो उनमें इस तरह का की प्रॉब्लम आएगी कि मच और अलॉट ऑफ दोनों ही दिए हुए हैं. अब आपको लगेगा भाई दोनों ही डाल दो तो दोनों में से ये तो दोनों ही सही है. नहीं, ऐसा नहीं है. यहाँ पे आपको अलॉट ऑफ ही लगाना होगा, अदरवाइज मच आप लगाएंगे सही होते हुए भी आपको उसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो आई होप द पॉइंट इज क्लियर. एक और एग्जांपल देखिए, ही गोज आउट अ लॉट, नॉट ही गोज आउट मच. देखिए कितना अजीब सा लगता है, ही गोज आउट मच, गलत सा लगता है ना. तो इसलिए ही गोज आउट अ लॉट. अच्छा, वी कैन यूज मेनी इन पॉजिटिव सेंटेंसेस बट अ लॉट ऑफ इज मोर यूजुअल इन स्पोकन इंग्लिश. वही वाली बात है, मेनी भी हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं, लेकिन a lot of जो है वो मोर कॉमन है. कैसे, देखिए, a lot of people और many people drive too fast. अब यही अगर आपको आ जाए ब्लैंक पीपल ड्राइव टू फास्ट और चॉइस दे दी जाए मेनी पीपल या a lot of, तो क्या रखा जाएगा यहाँ पे? दोनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे हमें रखना चाहिए a lot of. पॉजिटिव सेंटेंसेस में a lot of ही ज्यादा कॉमन है, ना तो मच कॉमन है ना मेनी. मेनी को हम प्रेफर करेंगे नेगेटिव में. हाँ, मगर ये याद रखें दैट वी यूज टू मच एंड सो मच इन पॉजिटिव सेंटेंसेस. अब ये तो खैर एक अलग बात हो गई ना, टू मच और सो मच. मच के साथ अगर कुछ और लगा हुआ है तो फिर हम इनको पॉजिटिव सेंटेंसेस में ही यूज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, वी स्पेंड टू मच मनी. तो आई होप दिस इज क्लियर.
ये मच, मैनी और अ लॉट ऑफ और प्लेंटी ऑफ, ये सारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया। अब एक चीज इसमें और समझ लीजिए, वो है मेनी अ। ये एक्सप्रेशन भी आपको मिल जाएगा, ये ऑलमोस्ट पोइटिक एक्सप्रेशन है। मेनी अ के माने मैनी ही होते हैं। मेनी अ का मतलब मेनी अलग और ए फॉर एप्पल जो होता है ना, मेनी अ। तो दो अलग अलग ये वो है, मेनी अ मिला के नहीं, दोनों को अलग अलग लिखा जाता है। सो यू सी दिस मेनी अ इज इक्वल टू मेनी। तो मिसाल के तौर पे मेनी अ स्पेक्टेटर केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग, यानी बादशाह की ताजपोशी को देखने बहुत सारे लोग आए। तो ये मेनी ए, ये जो है पॉजिटिव सेंटेंस में यूज हो जाता है। नेगेटिव में आमतौर पे इसको अवॉइड करते हैं हम, बजाय ये। अब आप इसी को यानी इसी एग्जांपल को ले लीजिए। मेनी स्पेक्टेटर केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग। बहुत सारे दर्शक, बहुत सारे नाजरीन देखने आए बादशाह की ताजपोशी को। अब अगर हम ये कहना चाहें कि साहब बहुत सारे लोग बादशाह की ताजपोशी को देखने नहीं आए, तो नॉट मेनी अ पीपल केम टू, या नॉट मेनी अ स्पेक्टेटर केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग। तो इसके बजाय अगर आप खाली मैनी का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बेहतर है, यानी कि many people did not come to watch the crowning of the, बल्कि यूं समझ लें कि many और many अ दोनों, सॉरी, नेगेटिव में यूज हो जाएंगे। लेकिन many अ की विशेषता ये है, सॉरी मैं थोड़ा सा आपको गलत बता गया था। नाउ प्लीज, जब जैसा कि पीछे आपको बताया कि many जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस में ज्यादा कॉमन है, पॉजिटिव में अ लॉट ऑफ यूज होता है। लेकिन many अ जो एक्सप्रेशन है, ये जो है ये पॉजिटिव में यूज हो जाएगा। नेगेटिव में ये उतना कॉमन नहीं है, इसके बारे में ये थोड़ा सा फर्क है। नेगेटिव में इट्स नॉट सो कॉमन इन नेगेटिव, यानी मेनी अ स्पेक्टेटर केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग। अगर हमें ये कहना हो कि ज्यादातर लोग, बहुत सारे लोग क्राउनिंग को देखने नहीं आए, तो बजाय मेनी ए के आप मेनी कहें, मेनी स्पेक्टेटर्स डिड नॉट कम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग। यहाँ पे मेनी ए का यूज ना करें। अगर आपको चॉइस दी हुई है मेनी और मेनी ए में, तो मेनी ही चूज करें। यहाँ पे मेनी अ को पॉजिटिव में चूज करें। तो फॉर एग्जाम्पल हियर, लेट मी थिंक इट ओवर अगेन। यस, मेनी अ पॉजिटिव में ही ज्यादा यानी प्रिवेलेंट है। और वैसे इसको सेम फॉर्मूले पे रखें तो ज्यादा बेहतर होगा मेरे ख्याल से। सॉरी, let's now be final about it. Many and many are more prevalent in negative than positive. आप ये समझ लें। तो many spectators did not, हाँ ये ध्यान रखिएगा, many के बाद सिंगुलर नाउन आएगा। जैसे हम कहते हैं many spectators s के साथ, many spectators came to watch the crowning of the king. तो many spectators, इसमें हमें क्या कहना चाहिए? A lot of spectators came to watch the crowning of the king, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है। अब अगर हमें नेगेटिव में यूज करना हो तो हम कहेंगे many spectators did not come to watch the crowning of the king। यहाँ पे हम a lot of के बजाय many प्रेफर करेंगे।
अब मेनी के बाद मेनी अ भी यूज कर सकते हैं। मेनी अ स्पेक्टेटर्स। अब मेनी अ जब लगा दिया तो स्पेक्टेटर्स में एस नहीं लगेगा। चलिए इस वर्ड को थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, मेनी स्पेक्टेटर को हटा देते हैं ताकि समझना आसान हो जाए। मेनी अ मैन, एम ए एन मैन कहेंगे, और मेनी मेन कहेंगे, एम ई एन मैन। समझते हैं ना आप? मेनी के साथ प्लूरल नाउन यूज होगा और मेनी अ के साथ सिंगुलर नाउन यूज होगा। तो ये तो पहले क्लियर हो गई बात। अब उसके बाद इसी सेंटेंस को देखते हैं। मेनी अ मैन केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग, या मेनी अ मैन डिड नॉट कम टू वॉच क्राउनिंग ऑफ द किंग। तो इस हिसाब से मेनी अ मैन डिड नॉट कम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग, ये भी ग्रामेटिकली तो सही है। और मेनी अ मैन, इसको एग्जाम्पल, इसी वाली एग्जाम्पल को लेते हैं। मेनी अ मैन केम टू वॉच द क्राउनिंग ऑफ द किंग। ये पुरानी अंग्रेजी में, या यूँ समझ लीजिए, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, यू नो, बिकॉज दिस एक्सप्रेशन इज पोइटिक, दिस इज पोइटिक एक्सप्रेशन। तो पहले तो ये पॉजिटिव में ही ज़्यादा कॉमन था, अब ये आज की इंग्लिश में नेगेटिव में कॉमन हो रहा है, लेकिन आप इसको पॉजिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। मेनी अ की सिचुएशन डिफरेंट है, मेनी की सिचुएशन डिफरेंट है, और मेनी अ की सिचुएशन डिफरेंट है। तो ये जैसे पुरानी बातें करते हैं ना, कि जैसे बहुत से लोग उसको देखने आया करते थे, इस तरह के सेंटेंसेस में मेनी ए का इस्तेमाल होता है, वरना मेनी ए अब बहुत कम यूज़ होता है। मेनी अ पीपल यूज टू कम टू वॉच द काइट फ्लाइंग इन द मैदान। इस तरह से होता था पुराने वक्त में, जब पतंगे उड़ती थी तो बहुत से लोग वो देखने आते थे। बट अब वो जाहिर बात है, इस तरह की जब डिस्क्रिप्शन हो तो उसमें पॉजिटिव में ये यूज़ हो जाता है। पॉजिटिव में मेनी ज़्यादा कॉमन है इन कंपैरिजन टू मेनी। So our conclusion is that many is more common in negative sentences and many is more common in positive sentences. ठीक है, मीनिंग दोनों का सेम होगा। आई रिपीट, जहां तक मच और अलॉट ऑफ का सवाल है, देखिए अलॉट, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, ये सब कुछ पॉजिटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा कॉमन है। मेनी और मच ये नेगेटिव सेंटेंसेस में ज़्यादा कॉमन है, और मेनी अ ये पॉजिटिव सेंटेंस में ज़्यादा कॉमन है। आई होप अब तो ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। हालांकि इंटरचेंजेबली भी अगर यूज़ हो जाए तो ग्रामेटिकली रॉन्ग नहीं होगा, लेकिन अब जो करंट इंग्लिश, रीसेंट इंग्लिश जो है वो यही है। एक बार फिर रिपीट किए दे रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजिंग सा आपको लग रहा होगा। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ या अ लॉट, ये तीन एक्सप्रेशंस पॉजिटिव सेंटेंसेस में कॉमन है, पॉजिटिव सेंटेंसेस में। और मेनी और मच ये नेगेटिव सेंटेंसेस में कॉमन है, और मेनी अ ये पॉजिटिव सेंटेंस में कॉमन है इन कंपैरिजन टू नेगेटिव। नेगेटिव में भी यूज हो जाएगा बट पॉजिटिव में ज़्यादा कॉमन है। तो इस तरह से, और याद रखिएगा मेनी, a lot of, lots of, ये सब they refer to number, much refers to quantity, बस ये फर्क है। ओके, दिस मच, many a lot, lots of, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। नाउ वी कम टू लेट, लेटर, लेटेस्ट एंड लेटर, LATTER, लेटर। इसको क्विकली समझ लेते हैं। Oh dear, dear me, dear me, dear me. Well, we will
stop here and continue it in the next video because it's been 1 hour. I'll have to make part 2 of it, right? Okay, so see you in the next video. Thank you.